Good morning to all. Four number was the no. Good morning to all. Am I audible you clearly? Okay. And are you able to see the screen also? We will start. We'll take some important points from jurisprudence. जो अपन ने jurisprudence चालू किया था उसमें का और जो जितना बचा है उतना पॉइंट्स वो कवर कर लेंगे अपन और एक लेक्चर होगा jurisprudence का एक्चुअली कोई भी क्लासेस jurisprudence का एक या दो लेक्चर में ही सब कुछ फिनिश कर देता है लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है मैं अपना पूरा जितना भी है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें के कि जहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका वो सब अपन लेंगे ठीक है तो इसलिए आज के लेक्चर में भी है और एक लेक्चर में थोड़ा सा प्रिपेयर करके नोट्स बना के वो टेबल्स वगैरह बना के उसका भी एक ले लेंगे ताकि जितना भी आपका पोर्शन मतलब हाईली इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट कवर हो जाए और जो भी आपके दो या तीन एमसीक्यूज आने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस में से तो आपको यू शुड बी एबल टू आंसर इट तो वो ले लेंगे वैसे मेरे दो तीन दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं लेक्चर सो वी आर गोइंग टू कवर दैट so what we have seen in the previous lectures so, so in the previous lectures we have seen jurisprudence their different their history important point from the milestone of pharmacy profession we have seen different edition of IP we have seen all the act their year of passing and their penalties involved in that act then seen we have seen the schedules of drugs okay schedules under the drug and cosmetic act 1940 we have seen this we have seen different forms then we have seen different laboratories of central drug laboratory different central drug laboratory and their functions we have seen where in which laboratory which kind of analysis they used to do we have seen this now yeah we was here we have seen up to this slide so we'll start from this slide only okay so particulars to be shown on the label जो भी आप टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हो जो भी आप जो भी प्रोडक्ट जैसे आपका लिक्विड ओरल्स हो गया या फिर इंजेक्टेबल हो गया सो व्हाट एवर प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑन योर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री so that should be labeled in a particular manner according to drug and cosmetic act 1940 okay so the label on the product should be in accordance with that that norms and provisions of
Drug and Cosmetic Act 1940. So which kind of labels normally appears on the different tablets, different uh, product. So we'll see it. Sometimes they might ask you question on this, so you have to cover this also. So first one is, here we have given a particular to be shown in on the label. So in the column first, category, and in the column second, that is a statement of label. So first, those drug which are Schedule H drug. Schedule H drug. Schedule H drug, we have seen they are nothing but the prescription drugs. Okay. Schedule H drug. So any product which is covered under Schedule H drug. So it should be labeled in this manner. So you have to label RX symbol on the left corner of the label. Then after that, you have to give a warning, Schedule H drug warning, to be sold by retail prescription of RMP only. मीन्स कोई भी शेड्यूल एक्स ड्रग होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आर एक्स का सिंबल होगा, जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे हाथ में आपको दिखाता हूँ, कैमरा अगर देख सके तो, ठीक है, मेरे हाथ में एक टैबलेट है, तो उसके ऊपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्या लेगा, आर एक्स सिंबल मिलेगा, और नीचे लिखा होगा शेड्यूल एच ड्रग और वार्निंग रेड कलर में, जो भी रेड कलर दिख रहा होगा, तो उसमें रेड कलर में वार्निंग है कि शेड्यूल एच ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी ओनली। ठीक है, तो ये होता है कि शेड्यूल एच ड्रग जो होता है, तो वहां पे आपको आर एक्स सिंबल लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है, और उसके बाद में आपको शेड्यूल एच का वार्निंग लिखना है। शेड्यूल एच का वार्निंग वही है कि इट इज अ शेड्यूल एच ड्रग एंड इट शुड बी सोल्ड ऑन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, जो भी शेड्यूल एक्स ड्रग होते हैं वो उसका वार्निंग क्या होता है कि आप देखो, कोई हर एक ड्रग जो होता है वो शेड्यूल एच ड्रग होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स है आजकल मार्केट में, so 90-95% around them they belongs to schedule H drug. तो शेड्यूल एच ड्रग का कैटेगरी जो है, दे शुड बी सोल्ड ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो आरएमपी होता है उसका प्रेस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर ही उसका सेल करना है। दे आर नॉट ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होता वो, कोई भी जाके उसको परचेज नहीं कर सकता। तो शेड्यूल एच ड्रग का क्या होना चाहिए, सो दे आर नथिंग बट द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। Okay, and you should have a label of RX on the top corner and schedule H warning. That is a schedule H warning to be sold on the retail to be sold by retail on the prescription of RMP only. ठीक है, रिटेल से कैसे, रिटेल से ही सेल करना है उसको, आप होलसेल से डायरेक्टली कस्टमर से नहीं सेल कर सकते, रिटेल शॉप में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग ये सिंपल है। देन शेड्यूल जी ड्रग्स। शेड्यूल जी में क्या होता है, ए ड्रग डेंजरस ड्रग्स। ओके, डेंजरस ड्रग्स होते हैं। ठीक है, सो शेड्यूल जी ड्रग के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉशन, वार्निंग क्या होना चाहिए, कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मेडिकल सुपरविजन। मतलब शेड्यूल जी ड्रग आपको घर पे आप ले नहीं सकते, वहां पे वार्निंग लिखा होता है। शेड्यूल जी के अंदर जो भी ड्रग आता है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोपेनिकल हो गया या फिर रेमडेसिविर हो गया, रेमडेसिविर शेड्यूल जी ड्रग है। सो शेड्यूल जी ड्रग जो भी होते हैं उनके यहाँ पे लेबल होना चाहिए कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। मीन्स शेड्यूल जी के ड्रग आपको हॉस्पिटल में जाके ही लेना है, शेड्यूल जी ड्रग। ठीक है, अंडर मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, या फिर आपको इंटॉलरेंस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई शेड्यूल जी ड्रग हैज अ लेवल ऑफ कॉशन, इट शुड टेक इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मेडिकल सुपरविजन। मतलब इसका मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही आपको ट्रीटमेंट लेना है शेड्यूल जी ड्रग। नो शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग में क्या लेबल होना चाहिए, कैसा लेबल होना चाहिए, सो शेड्यूल एक्स ड्रग लाइक all the sedative hypnotics, then psychotropic drugs, narcotic and psychotropic drugs. Schedule X क्या होता है, Schedule X is nothing but the list of narcotic and psychotropic drugs. Okay, तो उसके वो जो ड्रग है उसका प्रोडक्ट जो है स्ट्रिप होगा, या फिर कैप्सूल का स्ट्रिप होगा, या फिर आपका सिरप होगा, या फिर इंजेक्शन होगा, उसके ऊपर कौन सा लेबल होना चाहिए। शेड्यूल एक्स का ड्रग है तो उसके लिए शेड्यूल एक्स क्या, शेड्यूल एक्स का जो प्रोविजंस दिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, उसी के अंडर उसका लेबलिंग होना चाहिए। तो शेड्यूल एक्स ड्रग फॉर इंटरनल यूज,
ठीक है, शेड्यूल एक्स ड्रग फॉर इंटरनल यूज. सो NRX, रिमेंबर NRX, N मतलब नार्कोटिक, N is for narcotic, and then RX. NRX symbol you have to use this symbol on the left corner of label. जो भी आप अगर आपने कोई डायजिपम का स्ट्रिप देखा होगा, डायजिपम का एक स्ट्रिप देखा होगा, तो उसके ऊपर लेफ्ट, वो स्ट्रिप के बैक साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा आपका NRX. ठीक है, उसके बाद में नीचे आएगा शेड्यूल एक्स ड्रग, वहां पे वार्निंग आएगा शेड्यूल एक्स ड्रग, ये वार्निंग आएगा शेड्यूल एक्स ड्रग वार्निंग, टू बी सोल्ड बाय रिटेल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली. ठीक है, सो NRX सिंबल आएगा वहां पे शेड्यूल एक्स ड्रग का वार्निंग आएगा. वार्निंग क्या है? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली. ये RMP के प्रिस्क्रिप्शन के ही बाद में आप शेड्यूल एक्स ड्रग ले सकते हो, खरीद सकते हो. सो ये सब होना चाहिए शेड्यूल एक्स ड्रग के लेबल में. एनआरएक्स होना चाहिए टॉप में, ठीक है, लेबल में. और शेड्यूल एक्स वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली. ठीक है, जो भी नार्कोटिक ड्रग होते हैं आपके, बारबिचुरेट्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होती है, साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स, तो उसके लिए ये लेबल होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज शेड्यूल एक्स ड्रग फॉर बल्क ड्रग. अभी ये जो होता है इंटरनल यूज के लिए, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, जो भी फॉर्मुलेशन है उसके लिए ये है. अभी जो बल्क ड्रग है, बल्क ड्रग के मतलब जो पाउडर है, मेन बल्क ड्रग, उसमें कोई फॉर्मुलेशन नहीं. उसके लिए क्या होना चाहिए? ओके, सो शेड्यूल एक्स बल्क ड्रग, so should have RX in the red ink on the label. मान लीजिए कि आपने फिनोबार्बिटन का एक बोरी खरीद लिया, फिनोबार्बिटन का एक 50 kg का एक आपका बोरी है पूरा, ठीक है, तो उसके लिए आपको लग रहा है कि वो उसके बाद में उसका फॉर्मुलेशन बनाएंगे, लेकिन जो बल्क ड्रग होता है, पाउडर होता है फिनोबार्बिटन का, उसके लिए भी लेबलिंग होता है. ठीक है, सो शेड्यूल एक्स ड्रग बल्क ड्रग शुड हैव RX in the red ink on the label. देन शेड्यूल सी ड्रग का कैसे लेबल होना चाहिए? शेड्यूल सी ड्रग का, so in the schedule C drug, you know that schedule C drug has a biological product. Okay, schedule C1. So there should be a proper name of product. In addition to that, proprietor name, जो भी ओनर है उसका, वो लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, लॉट नंबर, स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल इन यूनिट्स, then manufacturer name, date of manufacturing, statement for test, for then maximum toxicity, then expiry date, nature of preservative or antiseptic agent added in the formulation, then precaution for preservation and storage. ये सब डिटेल होना चाहिए शेड्यूल सी ड्रग में. अगर शेड्यूल सी ड्रग, फॉर एग्जांपल, if you are manufacturing any saline solution, then the label of that should be, that label of that formulation should have proper name of the formulation. जैसे आपका रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन IP, ये पूरा लिखा होना चाहिए मेन हेडिंग में, रिंगर सेलेक्टेड IP. उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो लिखना है. उसके बाद प्रोप्राइटरी नेम मतलब जो होता है ब्रांड नेम, वो. उसके बाद जैसे DNS एक ब्रांड नेम है ना, उसमें क्या है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, जो आपका DNS नाम से फेमस है. उसके बाद उसका लाइसेंस नंबर आएगा, लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, लॉट नंबर, स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल इन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरर नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन एक्सपायरी डेट, स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम टॉक्सिसिटी, एक्सपायरी डेट, नेचर ऑफ प्रिजर्वेटिव एडेड. ये सब उसमें होना चाहिए शेड्यूल सी में. अभी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन में उसके लेबल में क्या होना चाहिए? सो एनीथिंग पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इसका डेफिनेशन अपन बाद में देख लेंगे, आने वाला है. सो विल सी द डेफिनेशन ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन इन द अपकमिंग स्लाइड और मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट patent and proprietary medicine should have label in this manner. Patent and proprietary medicine containing vitamins for prophylactic or for therapeutic use.
ऐसा लाइन लिखा होना चाहिए, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन और प्रोफिलैक्टिक और फॉर थेरेपेटिक यूज। सो अगर ये प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होना चाहिए, फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज ओनली, ये लाइन होना चाहिए, फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज ओनली। प्रोफिलैक्टिक मीन्स फॉर प्रिवेंशन, फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज ओनली और फॉर थेरेपेटिक यूज ओनली। अगर कोई पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो किसके लिए है, प्रोफिलैक्सिस के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है, या फिर थेरेपेटिक यूज के लिए है। जैसे होता है ना जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली, तो उसमें जैसे होता है मुसली पावर या फिर वो प्रोडक्ट, या फिर जैसे अभी रामदेव बाबा का है कौन सा भी ओटी, तो उसमें ये सब लेबल आएगा। ठीक है, सो इट इज अ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो उसमें ये लेबल आएगा फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज ओनली। अगर ये प्रोफिलैक्सिस के लिए है, जैसे कोरोनिल टैबलेट, जैसे बाबा रामदेव ने अभी कोरोना के पीरियड में कोरोनिल टैबलेट लॉन्च किया था, तो उसके लेवल पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज ओनली। ठीक है, अगर वो कोई प्रिवेंशन के लिए है, अगर वो कोई थेरेपेटिक यूज के लिए है, तो उसके लिए होना चाहिए फॉर थेरेपेटिक यूज, ऐसा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन दे आर नॉट फॉर थेरेपेटिक यूज, दे आर ओनली फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज। देन अगर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है आपका, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जैसे आपका आई ड्रॉप है, आई लोशन है, आई ऑइंटमेंट है, तो उसके लिए क्या वार्निंग होना चाहिए लेबल पे, जो लेबल होता है वो लेबल, इन ये सब वार्निंग जो है दे आर अकॉर्डेंस विद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है आपका 1940, उसके अंदर ही प्रोविजंस होते हैं उसके लिए कि हर एक शेड्यूल का लेबल कैसा होना चाहिए, उसके अंदर जो प्रोविजंस है वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, जो भी आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स आपका, आई ऑइंटमेंट, आई लोशंस, जो भी, उसके ऊपर क्या वार्निंग होना चाहिए। सो योर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड हैव वार्निंग इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस, डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट ए फिजिशियन, ये वार्निंग होना चाहिए उसके ऊपर। ओके, एंड देन स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टोरेज इफ एप्लीकेबल, मतलब उसका स्टोरेज कहाँ पे करना है, स्टोर इन द कूल प्लेस, ऐसा लिखा होता है वर्ड। उसके बाद और भी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आई ड्रॉप पे, तो डू नॉट टच द टिप ऑफ ड्रॉप, आपको टच नहीं करना है। डिस्कार्ड द प्रिपरेशन आफ्टर ओपनिंग इन द 1 मंथ, मतलब 1 महीने या 2 महीने तक आप उसको यूज कर सकते हैं आफ्टर ओपनिंग, बाद में आपको फेंक के देना है। अगर आपने आई ड्रॉप लिया और ये एक दो चार बार यूज किया और वैसे ही रख दिया आपके शेल्फ में, 2-3 महीने हो गए और बाद में फिर से आपको तकलीफ हो रहा है, तो वापस आप उसको लेके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टराइल प्रिपरेशन होते हैं जैसे ऑप्थेल्मिक, दे आर नथिंग बट द स्टराइल प्रिपरेशन, और वो बाद में उसमें माइक्रोबियल लोड बढ़ जाता है और दे आर नॉट सुटेबल फॉर रीयूज। सो आफ्टर ओपनिंग इन द 1 मंथ, मतलब जब ओपन करेंगे आप उसका सेल, तो आपको ये क्या 2 महीने के अंदर ही उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये सब एडिशनल वार्निंग होता है। तो so ophthalmic product should have warning if irritation persists or increases, discontinue the use and consult the physician. Okay, ये वार्निंग होना चाहिए उसके ऊपर, ये वार्निंग कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन फॉर वेटरनरी पर्पस। अभी वेटरनरी पर्पस मतलब जो जानवरों के मेडिसिन होते हैं, वेटरनरी मेडिसिन, सो उसके ऊपर भी अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, so label should be in accordance with the provisions of DNC Act. So symbol of animal, इसमें क्या होना चाहिए, symbol of animal, जो भी जानवर का मेडिसिन होता है उसके ऊपर symbol of animal होना चाहिए, कि symbol of animal on depicted on the label and not for human use, ऐसा लिखा होना चाहिए, not for human use. ओके, डैश फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ये लाइन लिखा होना चाहिए। जो भी वेटरनरी मेडिसिन होता है, कौन सा भी हो, अपना टैबलेट हो, बोलस हो, वैसे टैबलेट नहीं बोलते, वेटरनरी ड्रग जो होते हैं उसका अगर उसका जो है स्ट्रिप होता है टैबलेट का, तो उसको टैबलेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बोलस। बोलस क्यों बोलते हैं, कि वो बड़ा होता है टैबलेट साइज में, तो उसके बोलस बोलते हैं। सो सिंबल ऑफ एनिमल ऑन रेड लेबल, लाल लेबल में उसका सिंबल होना चाहिए एनिमल का। उसके बाद में नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ये सब वो ऐसा लाइन होना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट वन इज फिजिशियन सैंपल। अगर आप जो ड्रग बनाए उसका फिजिशियन का सैंपल बनाए, मतलब फिजिशियन सैंपल डॉक्टर को ही देने के लिए, नॉट फॉर सोल। ओके, तो उसके लिए क्या लेबल पे इंस्ट्रक्शन रहेगा, इसके लिए रहेगा
फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, ऐसा लेबल उसमें रहेगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ, मेरे पास है फिजिशियन सैंपल है कि आपको दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ट्राई करूंगा दिखाने। तो ये एक मेरे पास है, ठीक है। तो ये मेरे पास है, तो इसके ऊपर लिखा होगा रेड कॉर्नर में कि जो ले जो एक छोटा रेड कॉर्नर है वहाँ पे लिखा है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, ये है उसका, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट लेबलिंग भी मतलब प्रॉपर होना चाहिए उसका। रॉक्सीथ्रोमाइसिन का टैबलेट है ये, ठीक है। ये पेशेंट सैंपल है, तो यहाँ पे लिखा है रॉक्सीड 150 इरेथ्रोमाइसिन रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी, और कॉर्नर में लिखा है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल एच ड्रग का भी वार्निंग लिखा है, शेड्यूल एच ड्रग to be sold on retail, to be sold on sold by retail on prescription of RMP only, ये सब वार्निंग यहाँ पे लिखा होता है। रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा मतलब अगर वेटरनरी का टैबलेट देखेंगे आप, उसके ऊपर ये सब लिखा होगा क्या कि नॉट फॉर ह्यूमन यूज फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, और उसके ऊपर सिंबल भी होगा किसका, एनिमल का। जो फिजिशियन सैंपल होता है, फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, ओके। ये फिजिशियन सैंपल होते हैं जो ड्रग की इंफॉर्मेशन, आपका नया प्रोडक्ट है तो उसका इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए ना कि आपने प्रोडक्ट बनाया। जो एंड यूजर होते हैं आपके पेशेंट, उनको कौन बोलेगा? आप डायरेक्टली पेशेंट को जाके तो नहीं बोल सकते कि यार ये मैंने रॉक्सीथ्रोमाइसिन का टैबलेट बनाया, ये अच्छा है ले लो। नहीं, वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा? डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। तो फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है, इसलिए आपको फिजिशियन को सैंपल भेजना पड़ता है कि सर ये हमने प्रोडक्ट बनाया है, ये कैसे सुपीरियर है। ये सब मार्केटिंग जो होता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है, उनका जॉब होता है वो, ठीक है। सो फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, ये थोड़ा स्लोली लिया मैंने। इसमें एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इथिक्स एंड मोरल ऑफ फार्मासिस्ट। जो ड्रग जो आपका फार्मेसी एक्ट होता है 1948, ठीक है, उसके अंडर जो भी इथिक्स एंड मोरल्स होते हैं फार्मासिस्ट के, वो उसके लिए एक बार अपन उसको देख लेते हैं। क्योंकि आपको चैप्टर वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज बोलने जाऊंगा तो ये सब्जेक्ट ही पढ़ाने में टाइम लग जाए। सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सो प्राइसिंग ऑफ ड्रग, आपका मेडिकल शॉप है, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ ड्रग, तो द प्राइसिंग शुड बी फेयर, okay. Pricing should be fair. A pharmacist should not attempt to capture a business of fellow pharmacist and should calculate the price according to the given formula. तो पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में डिस्पेंसिंग था। अब आजकल के ज़माने में जो है मेडिकल्स, जो फार्मेसी शॉप्स है, वो रिटेल जो फार्मेसी शॉप्स, उसमें सब रेडीमेड फॉर्मुलेशन होती है। आपको क्या करना है? जाके सिर्फ जो डॉक्टर ने टैबलेट का नाम लिखा है वो जाके सेल से निकालना है, उसका देना है, बिल बना के देना है, और थोड़ी बहुत काउंसलिंग करना है। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में डिस्पेंसिंग था, डिस्पेंसरीज होती थी। डिस्पेंसरीज में क्या कि पूरा डॉक्टर बोल देता था, मतलब पूरा प्रेस्क्रिप्शन आता था कि आपको कि डिस्पेंस 10 टैबलेट ऑफ डाइजिपम। तो उसके लिए आप फिर डाइजिपम लेना है, एडिटिव लेना है, टैबलेट बना के फिर आपको डिस्पेंस करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो चार्ज होता था, जैसे प्राइस होती थी, तो वो पूरा ड्रग का प्राइस, फॉर्मुलेशन का प्राइस, बनाने का प्राइस, वो सब प्राइस बना के जोड़ के फिर आपको फाइनल बिल बनाना पड़ता था। तो pricing should be fair. Pharmacist should not attempt a capture of pharmacist should not attempt to capture a business of fellow pharmacist. मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदा, मतलब आपके फार्मेसी में वो टैबलेट 10 रुपीज का मिल रहा है स्ट्रिप, और दूसरे फार्मेसी में वो 15 रुपये का मिल रहा है। मतलब उसका नॉर्मल प्राइस MRP है 15 रुपीज, बाकी सब 15 रुपये में बेच रही है और आप 10 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? सो यू आर ट्राइंग टू कैप्चर ए बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट, आप उसको बहुत ही कम प्राइस में बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो इट इज अ माल प्रैक्टिस। सो प्राइसिंग शुड बी फेयर फॉर फेयर, एंड फार्मासिस्ट शुड नॉट attempt to capture the business of fellow pharmacist, and should calculate the price according to the given formula. जो भी ऑथेंटिक प्राइस है उसमें ही बेचना चाहिए, कम में नहीं बेचना चाहिए। कम में अगर बेचेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि यू आर ट्राइंग टू कैप्चर बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड, इसके अंदर ये सब आता है, फार्मासिस्ट रिलेशन टू इट्स ट्रेड, ठीक है।
नहीं तो होता है ना आजकल ये सब कंपटीशन होता है। एक्चुअली ये सिर्फ बुक्स में लिखा गया है, पढ़ाने को जैसे बोलना है इसलिए बोलते हैं हम, लेकिन ये सब कोई फॉलो नहीं करता। ये मैक्सिमम लोग वैसे ही करते हैं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए बोलते हैं 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। आप जो मेडिसिन दे रहे हो ह्यूमैनिटी के लिए दे रहे हो, ये कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन आजकल तो सब बिजनेस ही। ठीक। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ए pharmacist should not attempt to capture a business of fellow pharmacist by cutthroat competition or cutthroat competition, that is offering a gift or reducing the prices to the patient। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका मेडिसिन है, आपका मेडिकल शॉप है, आपका फार्मेसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका कम प्राइस में बेचो या फिर आप कोई गिफ्ट दे दो। गिफ्ट होता है ना आजकल, गिफ्ट देते कि नहीं नेक्स्ट टाइम भी हमारे यहाँ पे आओ, तो ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आइडियली। तो फार्मासिस्ट शुड नॉट अटेम्प्ट टू कैप्चर ए बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट। फेलो फार्मासिस्ट मतलब उसका दूसरा फार्मेसी वाला कलीग्स। ठीक है। बाय कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दैट इज बाय ऑफरिंग ए गिफ्ट और रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। ओके। ये होता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था। देन ट्रेडमार्क्स, साइन, सिंबल्स ऑफ अदर फार्मासिस्ट शुड नॉट बी कॉपीड। जो भी दूसरा फार्मेसी है आपका, उनका अगर कोई उनका अगर कोई लोगो है, ट्रेडमार्क है, सिंबल्स है, तो दैट शुड नॉट बी कॉपीड बाय यू। कि आपको फेयर फेयर ट्रेड करना है, मतलब फार्मासिस्ट इन रिलेशन विद द ट्रेड। सो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यू हैव टू फॉलो। So you should not try to capture the business of fellow pharmacist by cutthroat competition। cutthroat competition क्या होता है? That is by offering the gift। अगर कोई आप किसी को गिफ्ट ऑफर कर रहे हो पेशेंट को कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम आप जब भी बीमार पड़े और जब भी आपको मेडिसिन की जरूरत हो तो हमारे फार्मेसी पे आइए, हम आपको मेडिसिन के साथ 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 एक गिफ्ट भी देंगे। ऐसा नहीं चलता। दैट इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ओके। या फिर कम प्राइस देना। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज परचेस ऑफ ड्रग्स। So pharmacists should purchase standard quality of drug, should not purchase any misbranded, adulterated or spurious type of drugs। Then hawking of drugs मतलब लेके घूमना। hawking of drugs मतलब ड्रग्स लेके घूमना। हर एक के दरवाजे पर ड्रग्स लेके घूमना। That is hawking। So hawking of drug to prevent the mismedication and self medication, hawking of drug should be prohibited। Advertisement। So misleading and false claiming advertisement should be prohibited again। कि आप ऐसा नहीं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फिर फॉल्स क्लेमिंग एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। आप बोल नहीं सकते कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि आओ मेरे पास ये फॉर्मूला लेके जाओ, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसा क्लेम नहीं कर सकते आप। सो मिसलीडिंग एंड फॉल्स क्लेमिंग एडवर्टाइजमेंट शुड बी प्रोहिबिटेड। देन प्रोफेशनल एक्टिविटी should be professional to his work for dispensing and do not carry out diagnosis। आपका प्रोफेशन क्या है? आपका प्रोफेशन है फार्मासिस्ट। सो फार्मासिस्ट शुड बी प्रोफेशनल टू हिज वर्क। व्हाट इज हिज वर्क? टू कंपाउंड डिस्पेंस मेडिसिन एंड टू गिव द काउंसलिंग टू द पेशेंट, नॉट डायग्नोसिस। कि डायग्नोसिस किसका काम है? डायग्नोसिस काम है आपके फिजिशियन का, आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है कि आपका काम है कि डिस्पेंस करो मेडिसिन जो भी लिखा है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? पेशेंट को काउंसलिंग करो। काउंसलिंग रिगार्डिंग द यूज ऑफ मेडिसिन, एडवर्स इफेक्ट, टाइम टू बी टेकन, हाउ टू टेक मेडिसिन। ठीक है। सो टाइम, एट विच टाइम यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, व्हाट आर द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, उसके लिए काउंसलिंग करो। ठीक है। ना कि डायग्नोसिस करो, ना कि पेशेंट को बोलो नहीं यार ये आपको डॉक्टर ने गलत लिखा है और आपका तो मुझे तो टीबी लग रहा है और डॉक्टर ने तो आपको सर्दी खांसी की मेडिसिन दी है। ऐसा ये चीज में मत पड़ो। सो प्रोफेशनल एक्टिविटी शुड बी, फार्मासिस्ट शुड बी प्रोफेशनल टू हिज वर्क एंड दैट इज नथिंग बट द डिस्पेंसिंग एंड डू नॉट कैरी आउट एनी डायग्नोस्टिक वर्क। ठीक है। सो दैट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट। देन क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट। क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था जीपेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। Pharmacist should not enter into any secret arrangement or contact with the physician, that is by offering any commission
और रिकमेंडिंग हिज मेडिकल स्टोर। मतलब ऐसा नहीं कि आपका मेडिसिन है, मेडिकल स्टोर है, तो आप डॉक्टर के साथ में आपका सेटिंग हो गया, तो आपको डॉक्टर के साथ सेटिंग नहीं करना है। उसको ये नहीं करना है, बोलना है कि मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा, आपके सारे पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है मेरे मेडिकल पे भेज दूँ ताकि मेरा बिजनेस बढ़े, और वो जो भी मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो उसमें मैं आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगा। आइडियली ये इट इज रॉन्ग, सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट। सो फार्मासिस्ट शुड नॉट एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और should not contact with the physician, that is by offering any commission for recommending his medical store। ये आइडियली नहीं करना चाहिए, ये आइडियली नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं कैंडस्टाइन अरेंजमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट आजकल के जमाने में तो सब यही होता है कि अगर डॉक्टर को कमीशन नहीं देंगे आप, तो डॉक्टर आपका आपके यहाँ पे बोलेगा नहीं कि डॉक्टर पेशेंट को नहीं बोलेगा कि ये फार्मेसी से ले लो, ऐसा नहीं बोलेगा, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। देखो, जो फिजिशियंस होते हैं ये, हाँ, आजकल के जो मार्केट है, मार्केट में तो वैसे सबसे ज्यादा लूटने वाले यही लोग होते हैं, ठीक है। अपन उनको देवता मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी जान भी बचा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसे नहीं होते। लेकिन आजकल वो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बिजनेस का कंपटीशन इतना बढ़ा है। अगर आपको मेडिकल शॉप ओपन करना है तो आपका डॉक्टर के साथ में होना जरूरी है। अगर डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया आपने, तो आपको मेडिकल शॉप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी होता है, आजकल तो डिपॉजिट मांगते हैं, बहुत सारा डिपॉजिट मांगते हैं। अगर कोई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, वहां पे आपको मेडिकल डालना है, तो अगर आपने बोल दिया सर कैसा है क्या है, तो वो डायरेक्टली आपको बोल देगा कि आप मेरे को कितना डिपॉजिट दे सकते हो, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कितना डिपॉजिट दे सकते हो मुझे। उसके बाद में फिर वो आपको मेडिकल डालने के लिए परमिट करेगा। अगर आपने डिपॉजिट नहीं दिया कुछ उसको, तो वो आपको जो जितने भी पेशेंट्स है उसका प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो आपके पास भेजेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन यू शुड नॉट, आइडियली जो पढ़ने के लिए जो है, जो लॉज है, ये है क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट। मतलब pharmacist should not enter into any secret arrangement with the contact with physicians, and that is by offering any commission for recommending his medical store, ठीक है। then uh, liaison with the public means relation with the public। so pharmacist should update his knowledge time to time and should educate the patient regarding the administration of drug, possible adverse effect, that is a counseling, okay। but you should not engage in the diagnosis and treatment। ट्रीटमेंट में आपका रोल नहीं है, डायग्नोसिस में आपका रोल नहीं है। आपका रोल इसमें डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट मैक्सिमम। सो यू शुड हैव टू बिल्ट अप अ गुड रिलेशन विद द पब्लिक आल्सो, ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एथिक्स एंड मॉरल ऑफ फार्मेसी। इसमें आपको मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चंस बनता है, एक तो ये आप बनता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, should not attempt to capture a business of fellow pharmacists by cutthroat competition by offering gifts or reducing the prices of medicine to the patients। ये हो गया आपका कट थ्रोट कंपटीशन। इसके ऊपर एक आ सकता है, या फिर आपका क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है clandestine arrangement। So pharmacists should not enter into any secret arrangement or contact with the physician, that is by offering any commission for recommending his medical store। ये नहीं कि होता, मतलब आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन यही सब होता है आजकल। अगर ये नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा ही होता है। मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसका, रिटेल स्टोर का। नेक्स्ट, important definitions, these definitions are very important, okay। so you have to focus clearly it on, sorry। so first one is a drug inspector। now these definitions are under the drug and cosmetic act। जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, उसके अंडर जितने भी डेफिनेशन है वो सब इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन मतलब एक लाइन का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो ड्रग इंस्पेक्टर आप किसको बोलेंगे, ऐसा नहीं कि अरे गहरे आदमी को आप ड्रग इंस्पेक्टर बोल सकते हो, ओके। या फिर कोई फार्मासिस्ट है तो उसको आप ड्रग इंस्पेक्टर बोल सकते हो, ऐसा नहीं। सो उसका डेफिनेशन दिया है, किसमें दिया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो उसका डेफिनेशन क्या है, सो ड्रग इंस्पेक्टर is nothing but the drug inspector is appointed a person which is appointed by
central government or state government under the section 21 of the DNC Act. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 21 के अंडर जो अपॉइंट किया वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो ऐसे पर्सन को ही आप ड्रग इंस्पेक्टर बोल सकते हो। तो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था। सो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 21 ऑफ डीएनसी एक्ट। माउस के ऊपर ध्यान दो, सेक्शन 21 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है, जीपैट 21 में क्वेश्चन आया था। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड ऑन इन द under the section 21 of Drug and Cosmetic Act. Okay, now this is for allopathic drug, this is for modern drugs. So drug inspector is appointed under 21 section of DNC Act for allopathic medicines or modern medicine, and for Ayurvedic, Siddha and Unani medicines, so DI is appointed under the section 33G of DNC Act. मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सेक्शन 33G के अंडर डीआई का अपॉइंटमेंट होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और आपके जो मॉडर्न मेडिसिन होते हैं, आपके जो एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं, उसके लिए सेक्शन 21 ऑफ डीएनसी एक्ट। सो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ डीएनसी एक्ट बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट किसको बोलेंगे और उसका अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? सो अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ डीएनसी एक्ट बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू डीएनसी एक्ट। ओके, अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक का एनालिस्ट है तो वो आएगा आपका सेक्शन 20 के अंडर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर उसका अपॉइंटमेंट होता है। अगर वो आयुर्वेदिक जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, उसके लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 33 ऑफ, ठीक है। मतलब अगर आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 20 के अंदर। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इज डन अंडर सेक्शन 20 ऑफ डीएनसी एक्ट बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट in relation to drug and cosmetic, in relation to Ayurvedic, Siddha, Unani, so it is appointed under section 33F. ये याद रखो। Now next point is a definition, adulterated drugs. So there are three definitions: adulterated drug, misbranded drug, spurious drug. So these three definitions are very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो you should know the definition of these three. So what do you mean by adulterated drug? Adulterated drug क्या होता है, misbranded drug क्या होता है, spurious drug क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मतलब डेफिनेशन वन लाइन का नहीं है यहाँ पे। adulterated drug is defined ऐसा, और उसमें कंडीशंस होते हैं, कौन से कंडीशन है उसके अंडर आप उसको बोलेंगे कि adulterated drug है। Okay, so we'll see it. So a drug or drug preparation is deemed to be adulterated if drug contains whole or in a part filthy, putrid or decomposed substance. First condition क्या है? If drug consists of a whole or in a part any filthy, putrid or decomposed substance. अभी ये फिल्दी, प्यूट्रिड, डिकम्पोज्ड क्या होता है मैं बोलता हूँ। फिल्दी मतलब गंदा, प्यूट्रिड मतलब वैसे ही, डिकम्पोज्ड मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। सो अगर आपके ड्रग में कुछ मतलब पूरा ड्रग या फिर कुछ पार्ट है ड्रग का जो गंदा है, सड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अडल्ट्रेटेड ड्रग। सो ए ड्रग is deemed to be adulterated drug if drug consists of a whole or in a part of filthy, putrid, decomposed substance. If drug is prepared, packed or stored under unsanitary condition, or maybe it may be contaminated with the filth. गंदगी से ये contaminated हो सकता है, और which renders the content injurious to health. मतलब ड्रग अगर आपने ड्रग प्रिपेयर किया, स्टोर किया, पैक किया अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, ओके, सो उसमें क्या होगा, उसका कंटेमिनेशन भी हो सकता है।
कैसे? फिल्थ से। फिल्थ मतलब ये गंदा होता है, उसमें कंटेमिनेशन भी हो सकता है। नाउ दिस कंटेमिनेशन मे रेंडर द ड्रग इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आपने ड्रग प्रिपेयर किया, पैक किया, स्टोर किया अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, तो उसको भी बोलेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग। If container is used, container used is composed of partly or wholly by poisonous or deleterious substances which will render the drug injurious to health। मतलब आपने अगर ड्रग अच्छा है, ड्रग आपने अच्छे से पैक किया है, सैनिटरी कंडीशन यूज किया है, और ड्रग में कोई खराब खराब नहीं है, या फिर फिल्दी डिकम्पोज सब्सटेंस नहीं है, ड्रग अच्छा है, लेकिन आपने कंटेनर जो यूज किया है वो कंटेनर क्या है, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस है या फिर डिलीटेरियस सब्सटेंस है, तो दैट विच विल रेंडर इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब उसका कंटेनर अगर आपने अच्छा नहीं यूज किया तो उसको भी अडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे। If drug consists of color other than those prescribed for the prescribed means ड्रग कंसिस्ट ऑफ कलर अदर देन प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जो प्रेस्क्राइब कलर दिया है उन्होंने आईपी में वो आपने यूज नहीं किया है, तो उसके लिए भी आप आपको अडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे उसको। इफ ड्रग कंसिस्ट ऑफ अ कलर अदर देन दोज प्रेस्क्राइब्ड फॉर और कंसिस्ट ऑफ ए हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर ड्रग में आपने जो बोला है एज पर द फार्माकोपिया, जो कलर बोला है वो नहीं है, या फिर उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको बोलेंगे अडल्ट्रेटेड। if drug consisting mixed substances so that to reduce the quality or strength। अगर आपका फॉर्मुलेशन में दो ड्रग है मिक्सचर, और उसमें क्या हो रहा है कि पोटेंसी कम हो रहा है, या फिर आपके ड्रग में कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड है कि दैट कंपाउंड इज डिक्रीजिंग द क्वालिटी और पोटेंसी ऑफ ड्रग, सो इफ ड्रग ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग। कि अडल्ट्रेटेड ड्रग किसको बोलेंगे? कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ये कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ड्रग में होगा तो उसको बोलेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग। सो अगेन आई विल रिवाइज। A drug is a drug is deemed to be adulterated if drug contain whole or in a parts of healthy, putrid or decomposed substance. If drug is prepared, packed, stored under unsanitary condition, which may be contaminated with the filth and which will render a drug content injurious to health. If the container used is composed of partly or fully by poisonous or deleterious substances which will render injurious to health. A drug consists of a color other than prescribed or consists of a harmful or toxic substances. A drug consisting mixed substances so that the quality or strength of drug will be reduced. So these are the conditions. If it is found in a formulation, the formulation is adulterated drug. Are you getting or not? Hello? कि अडल्ट्रेटेड ड्रग किसको बोलेंगे? अगर ड्रग में कोई फिल्दी प्यूट्री डिकम्पोज सब्सटेंस है, या फिर आपने ड्रग पैक किया अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, अनसैनिटरी कंडीशन के अंदर उसका पैकिंग किया, स्टोरेज किया, प्रिपेयर किया, तो उसमें क्या होगा, हो जाएगा कंटेमिनेशन हो जाएगा और वो हेल्थ के लिए इंजurious हो जाएगा। उसके बाद में अगर ड्रग का कंटेनर जो है वो उसका कोई पार्ट है या फिर फुल कंटेनर पॉइजनस है या फिर मेड अप ऑफ डिलीटेरियस सब्सटेंसेस व्हिच विल रेंडर इंजurious टू हेल्थ। ठीक है, ये सब अडल्टेटेड ड्रग के डेफिनेशन में आता है। तो मतलब आपको ऐसा पूछ सकते हैं, मतलब ये क्या दो लाइन देगी इसका, ऐसा लाइन देगी आपको, ड्रग कंसिस्ट ऑफ ए कलर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड और कंसिस्ट ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, नाउ इट इज कॉल्ड एज। आपको नीचे ऑप्शन देखिए, अडल्टेटेड, स्पूरियस, मिसब्रांडेड, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन आप याद रखो, अगर उसमें कोई फिल्दी प्यूट्री डिकम्पोज्ड मटेरियल है, ओके, सो ए ड्रग डीम्ड टू बी अडल्टेटेड इफ, ये वर्ड से याद रखो, सिर्फ फिल्दी प्यूट्री डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस, अनसैनिटरी कंडीशन, प्रिपरेशन, पैक्ड और स्टोरेज ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन। उसके बाद
poisonous substance. If the container is made up of a poisonous substance. Okay, then a color other than prescribed. ठीक है, then next one is a mixed with the substances so that the strength will be reduced. तो ये 4-5 कंडीशन है, उसकी कंडीशन अगर है तो उसको बोलेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट वन इज अ misbranded drug. So if misbranded drug means what? So a drug is deemed to be misbranded. Misbranded drug किसको बोलेंगे? If it is colored, coated, powdered or polished so that the damage is concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic value than really it is. मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई ड्रग को आपने कलर किया, कोटिंग किया, पाउडर किया या फिर उसको पॉलिश किया, क्यों? कि उसमें जो गफला है वो छुपाने के लिए. ठीक है, मतलब आपके फॉर्मुलेशन में कुछ गफला है लेकिन वो छुपाने के लिए आपने क्या किया कि उसको एक अच्छे से कलर किया या फिर कोटिंग किया या फिर पाउडर फॉर्म में डाला या फिर पॉलिश किया, सो दैट द डैमेज इज कंसील्ड, और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन रियली इट इज. मतलब आपका ड्रग जो है वो उसका थेरेपेटिक वैल्यू कम है, लेकिन आपने बड़ा चढ़ा के बोलना है कि नहीं यार मेरा ड्रग तो बहुत थेरेपेटिकली इफेक्टिव है और बहुत थेरेपेटिक वैल्यू है इसको, ऐसा किया, उसको बोलेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग. और इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर आपको ड्रग जो है, आपका ड्रग का फॉर्मुलेशन का लेबल जो है वो अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपने लेबल नहीं किया, कहाँ पे फॉर्मेट दिया वाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर. ठीक है, सो इफ इट इज नॉट लेबल इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, if it is labeled in such a manner that statement, design or devices make false claim of the drug or use of drug are false or misleading. मतलब आपने ड्रग के ऊपर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया या फिर कोई स्टेटमेंट दिया, डिजाइन दिया कि वो फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मिसब्रांडेड ड्रग. सो a drug deemed to be misbranded if it is colored, coated, powdered or polished so that the damage is concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic value than really it is. Okay, then if it is not labeled in a prescribed manner, then again it will be considered as a misbranded drug. If labeled in such a manner that statement, design or devices make any false claim of drug use or uses of false or misleading, uses are false or misleading, so that again it will be considered as a misbranded drug. So ये याद रखो कि if drug is a colored, coated, powdered, polished to conceal the damage, and if it is made appear of better or greater therapeutic value than it is, then if it is not labeled in a prescribed manner, if it is labeled in such a manner that if statement or any statement or design or devices make any false claim or misleading claims, so it will be called as a misbranded drug. ये 4 कंडीशन है misbranded drug की, ये याद रखो. Then next one is a spurious drug. Spurious drug किसको बोलेंगे? If it is imported under the name of another drug, as it is question आया था, if drug is imported under the another name, so it can be called as misbranded, spurious or adulterated drug. As it is line to line question पूछ सकते GPAT में. If drug is imported under name of another drug, that is a imitation or substitute for another drug. imitation मतलब copy. Okay, so if drug is imported under the name of another drug, मतलब आपने क्या किया कि आपको इंपोर्ट करना है पैरासिटामोल, आपने पैरासिटामोल ही इंपोर्ट करना है और आपने किया उसको मतलब आपने वो ड्रग पैरासिटामोल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम के अंडर, मतलब आपका वो ड्रम में क्या है, ड्रम में है पैरासिटामोल लेकिन ऊपर लेबल लिखा है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वो पैरासिटामोल है लेकिन पैरासिटामोल इंपोर्ट बैन है, तो आपने क्या किया, जो ड्रग का इंपोर्ट करना बैन किया वाला है तो उसको इंपोर्ट करना है आपको,
बिजनेस के लिए। लेकिन फिर आप ऐसे तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर अगर लिखा होगा पैरासिटामॉल तो पकड़ लेंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नाम अलग ड्रग का, अंदर ड्रग अलग, मतलब सब घपला। ठीक है, तो इफ ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग देन इट इज अ स्पूरियस ड्रग। ओके, सो what it is, imitation of or substitute for another drug, मतलब ये किसी और ड्रग के लिए कॉपी है या फिर कोई सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, एंड आर रिजेम्बलेंस टू अनदर ड्रग इन अ मैनर टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग। मतलब ओरिजिनल ड्रग का आपको आइडेंटिटी हाइड करना है, ओरिजिनल ड्रग का आइडेंटिटी आपको छुपाना है। अगर आपने क्या किया कि इंपोर्ट किया वो ड्रग अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग, तो दैट इज अ स्पूरियस ड्रग। ठीक है, ये होगा एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ इट बियर्स लेबल और कंटेनर और लेबल और नेम ऑफ कंपनी विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, और इफ इट इज अ फिक्शियस, मतलब आपने कोई मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर लेबल लगाया। ठीक है, वो जो लेबल है वहां पे आपने अपना कंपनी का नाम लिखा, लेकिन आपकी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपकी कंपनी फिक्शियस है, आपकी कंपनी आपकी जो कंपनी धोखा देने वाली कंपनी है, मतलब आपकी कंपनी है ही नहीं कहीं पे, लेकिन आपने कंपनी का लेबल लगा के रखा है। तो इफ इट बियर्स अ लेबल और कंटेनर और नेम ऑफ कंपनी which actually does not exist, or if it is a fictitious, then the product is known as a spurious drug। ठीक है, spurious drug किसको बोलेंगे, याद रखना आप, if drug is imported under the name of another drug, कि एक ड्रग के नाम के ऊपर आपने दूसरा ड्रग इंपोर्ट किया तो उसको बोलेंगे स्पूरियस ड्रग। या फिर आपके जो ड्रग का लेबल है, जो कंटेनर है, वह कंटेनर है, लेबल है या कंपनी का नाम है which does not exist, or if it is a fictitious then it is called as spurious drug। ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये अडल्टेटेड ड्रग के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, स्पूरियस ड्रग के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखो, इसमें मिस ब्रांडेड में क्या है, तीन चार वर्ड याद रखना है आपको। ई ड्रग इज कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिस्टर टू सो दैट द डैमेज इज कंसील्ड। ये वर्ड याद आए तो बिना लेने का मिस ब्रांडेड ड्रग। या फिर अगर ये लाइन आई, इफ ड्रग इज नॉट लेबल इन अ प्रिस्क्राइब ब्रांड, फिर से आपको मिस ब्रांडेड ड्रग लेबल ये टिक करने का उसको। इफ लेबल्ड इन सच मैनर दैट डिजाइन डिवाइसेस में फॉल्स क्लेम अगर होता है उसके ऊपर ड्रग का यूज के बारे में, या फिर मिसलीडिंग यूज है, तो वो भी मिस ब्रांडेड है। मतलब आपको ट्रिक कौन सा यूज करना है कि आपके इसमें कौन से वर्ड है, वो वर्ड याद रखना है। लेबल है इसमें, लेबल नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर, कलर कोटेड, पाउडर पॉलिश्ड, डैमेज इज कंसील्ड, इतने तक याद रखो तो वो मिस ब्रांडेड है। स्पूरियस ड्रग में क्या लिखना है, इफ ड्रग इज इंपोर्टेड अंडर द अनदर नेम, एक की जगह दूसरा इंपोर्ट किया, एक के नाम के, मतलब आपको पैरासिटामोल इंपोर्ट करना है लेकिन आप उसको सैलिसिलिक एसिड के नाम के तहत इंपोर्ट कर रहे हो तो वो स्पूरियस होगा। अगर उसका लेबल, कंटेनर और नेम ऑफ कंपनी ये जो है उसके ड्रग के ऊपर वो सब फिक्शियस है या फिर एग्जिस्ट नहीं करते तो उसको बोलेंगे स्पूरियस ड्रग। याद रखो आप, ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अडल्टेटेड ड्रग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका मिस ब्रांडेड इंपॉर्टेंट है, स्पूरियस इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर किसको बोलेंगे, सो सेंट्रल रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट maintained by Central Council under the Section 15A of Pharmacy Act 1948। सेंट्रल रजिस्टर मतलब क्या, जो सेंट्रल काउंसिल होता है, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली इट इज अंडर द ड्रग एंड ड्रग ड्रग सॉरी, जो फार्मेसी एक्ट होता है 1948 उसके अंडर जो काउंसिल्स होते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, ओके, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग है ये। ठीक है, सो सेंट्रल रजिस्टर मीन्स रजिस्टर्ड मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर मेंटेन करता है वो, जिसमें पूरा जितना भी इंडिया का फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका नेम्स रहते हैं।
So central register means register maintained by Central Council of India for pharmacists under the section 15A of Pharmacy Act 1948. उसके बाद मैजिक रेमेडीज, ये होता है मैजिक रेमेडीज। ये जो मैजिक रेमेडीज एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, उसके अंडर ये मैजिक रेमेडी का डेफिनेशन है। सो व्हाट इज इट? इट इंक्लूड्स talisman, mantras, kavachas, or any other charm of any kind which elevate to possess a miraculous power for diagnosis, treatment, mitigation, prevention or cure of disease or alteration of human body function। मैजिक रेमेडी किसको बोलेंगे? मैजिक रेमेडी इसको बोलेंगे कि जैसे होता है तलिस्मान होता है, मंत्र होता है, कवचा होता है, जो काले काले ताइद देंगे आपको। जैसे जो ब्लैक मैजिक वाली होती है वो काला ताइद देंगे, या कोई कुछ आपको छोटे से पेटी में भर के कुछ देंगे, या फिर मंत्र देंगे, या फिर कवच देंगे। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट द मैजिक रेमेडीज। will you please call me after half an hour? I'm in a lecture। इसको बोलेंगे मैजिक रेमेडीज। सो तलिस्मान, मंत्रास, कवचास और एनी अदर चार्म, या फिर दूसरा कोई मटेरियल जो बाबा थी, जैसे राधे माँ जो त्रिशूल लेके खड़ी होती है, या फिर कोई बाबा आपको कुछ चार्म देता है। ओके, सो दैट इलीगली पोजेसेस ए मिरेकुलस पावर। उनका क्लेम होता है कि नहीं, इससे आप ठीक हो जाओगे, कि उनमें एक मिरेकल जैसे पावर, मिरेकल कर देंगे ये। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है और कोई बाबा आके बोलता है कि ये ले लो मंत्र या तलिस्मा या फिर ये ताइत ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द मैजिक रेमेडी। सो तलिस्मान, मंत्र, कवचस और एनी अदर चार्म ऑफ एनी काइंड ऑफ चार्म व्हिच इलीगली और एलिवेट टू पोजेस ए मिरेकुलस पावर। उनका ऐसा मानना है कि इसमें एक जादुई ताकत है, ये कवचा में या मंत्रा में या तलिस्मा में, जो आपको ठीक कर देगी। ये for diagnosis, treatment, mitigation, or to prevent the cure of disease or alteration of physiological function of body. So that is nothing but a magic remedy. Then dutiable good. Dutiable goods means what? We'll take very fast now. Dutiable goods means what? कि medicinal and toilet preparation that has been subject to duties of excise leviated under the act। जो भी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट होता है आपका, उसके अंडर जो भी यूज करते हैं, जैसे आपका अल्कोहल यूज करते हैं या फिर इन्हीं नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यूज होता है अगर उस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट ड्यूटीएबल है, उसको आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो दैट इज द ड्यूटीएबल गुड। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैज बीन सब्जेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविएटेड अंडर द एक्ट। जो मेडिसिनल एंड या फिर एक्साइज एक्ट जो है, एक्साइज एक्ट, उसके अंडर जो भी प्रिपरेशन में आप अल्कोहल यूज कर रहे हो या फिर कोई नार्कोटिक ड्रग यूज कर रहे हो या फिर कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यूज कर रहे हो, तो उसकी ड्यूटी आपको, ड्यूटी मतलब टैक्स, ड्यूटी मतलब क्या, टैक्स, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो ऐसा कौन से ड्रग्स है या फिर ऐसे कौन से प्रिपरेशन है तो ड्यूटीएबल है, मतलब जिसमें भी ये अल्कोहल यूज होगा, जिसमें भी आपका नार्कोटिक ड्रग यूज होगा, जिसमें भी आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यूज होगा, वो सभी गुड्स जो है, वो सभी जो प्रोडक्ट्स जो है, वो सब ड्यूटीएबल है। नेक्स्ट वन इज डीनेचुरेटेड स्पिरिट। डीनेचुरेटेड स्पिरिट मतलब उसका मतलब क्या है? डीनेचुरेटेड स्पिरिट, आपने यहाँ पे ये वर्ड देखा होगा कई बार, आपका जो सैनिटाइजर है उसके ऊपर भी ये वर्ड होगा, डीनेचुरल स्पिरिट। उसका मतलब क्या है? इट मीन्स द alcohol of any state, solid, liquid or gaseous, alcohol of any state which has made unfit for human consumption by addition of substances approved by central or state government। denatured spirit क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अल्कोहल ऑफ एनी स्टेट, मतलब कौन सा भी अल्कोहल होने दो, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। जैसे आपका रेगुलर इथेनॉल होता है जो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो, जैसे ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया आपका, या फिर जो भी है बकाडी जो भी नाम से, वो क्या है? दे आर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट अल्कोहल इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
वो आप पिएंगे या फिर आप लेंगे तो आप उससे मर नहीं जाओगे, ठीक है। बाकी का जो कॉम्प्लिकेशन है, सेडेशन या आप स्लरिंग ऑफ स्पीच, वो होगा, वो बाकी बात की बात है। लेकिन दे दिस दैट अल्कोहल इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, but if any alcohol of any state is made unsuitable for human consumption by addition of another substance by state government or central government, that is known as denatured spirit। जैसे होता है, आपको बोला था मैंने when we was discussing the alkaloids, so there was one alkaloid known as brucine, strychnine and brucine। so brucine is used for denaturation of अल्कोहल। तो उसमें ब्रूसिन ऐड करते हैं अल्कोहल में, ताकि वो अल्कोहल कंजम्पशन के लिए अनफिट हो, मतलब अगर वो आपने अल्कोहल ले लिया तो आप मर जाओ, ठीक है। तो अगर किसी ने, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि हैंड सैनिटाइजर जो होता है, मोस्ट ऑफ द अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, या फिर आपका स्पिरिट जो होता है, आपके डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के पहले वो साइड को वहाँ पे डिसइंफेक्ट करते हैं बाय द स्पिरिट। वो जो स्पिरिट होता है उसमें भी इथेनॉल ही होता है, लेकिन दैट इज अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज अ डीनेचर्ड स्पिरिट। आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो। नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट किसको बोलेंगे आप? व्हाट डू यू मीन बाय प्रूफ स्पिरिट? Strength of alcohol is calculated as a proof degree. As per the Indian standard, 100% proof spirit is a 57.1% weight by volume by volume। कि कितना प्रूफ है, प्रूफ कितना है, प्रूफ स्पिरिट मतलब क्या? पहले जमाने में क्या होता था कि प्रूफ मतलब क्या, कि जो भी इथेनॉल है उसको प्रूफ, ये वर्ड कहाँ से आया प्रूफ? प्रूफ ये वर्ड आया है गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर जो गन में यूज करते हैं, बारूद, वो बारूद का पाउडर वहां पे गन में रख के उसको इग्नाइट किया जाता था, और उसका मतलब 100% इग्नाइट होगा तो वो बोलते थे उसको 100% प्रूफ है। प्रूफ क्या है उसका? ये गन पाउडर ऑथेंटिक है या फिर अच्छे है या बुरा है, इसका प्रूफ क्या है? तो वो जला के देखते थे गन के ऊपर, तो अगर जलता है पूरा अच्छे से, जितना शॉर्ट पीरियड में जलता है, तो उसको प्रूफ बोलते थे। तो प्रूफ वहां से आया है। तो प्रूफ स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट मतलब अल्कोहल, प्रूफ स्पिरिट में तो क्या, कि उतना कितना ऑथेंटिक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज कैलकुलेटेड एज अ प्रूफ डिग्री, एंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 100% प्रूफ मीन्स अल्कोहल और इथेनॉल ऑफ 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट अगर इथेनॉल है उसमें, तो उसको बोलेंगे 100% प्रूफ। कोई भी प्रिपरेशन में अगर इथेनॉल है कितना, 57%, 57.1% वेट बाय, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उतना अगर इथेनॉल है उसमें, तो उसको बोलेंगे 100% प्रूफ। नेक्स्ट वन इज बॉन्डेड लेबोरेटरी एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। तो ये दोनों क्या होते हैं? बॉन्डेड लेबोरेटरी मीन्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था डायरेक्टली जीपीएट में। सो इट इज प्रीमाइसेस और प्लेस approved for manufacturing, storage, manufacturing, preparation, storage of medicinal and oil preparation containing alcohol or Indian hemp or narcotic drug or other product on which duty has not been paid। अभी अल्कोहल क्या है, इंडियन हेम्प क्या है? इंडियन हेम्प मतलब गांजा, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब ड्यूटीएबल गुड्स है। हमने देखा था ड्यूटीएबल गुड्स कौन से, ये है। तो अल्कोहल, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक, तो इसके ऊपर ड्यूटी तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इनके फॉर्मुलेशन के लिए एनी प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड ऑयल प्रिपरेशन कंटेनिंग दीज थ्री, अल्कोहल, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग, ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया है, ड्यूटी पे नहीं किया है, ठीक है। वो बाद में करने वाला है, कब? जब प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा तब ड्यूटी बाद में पे करने वाला है, पहले नहीं पे किया, तो उसको बोलेंगे बॉन्डेड लेबोरेटरी और लेबोरेटरी इन बॉन्ड। इसको और एक टर्म है मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है कोई सैनिटाइजर, ठीक है, जो अल्कोहल बेस है, जिसमें अल्कोहल है, तो आपके पास दो ऑप्शन है,
एक तो आप बॉन्डेड लेबोरेटरी बना सकते हो या फिर नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब क्या है कि बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब वहाँ पे आपको जो भी अल्कोहल के ऊपर ड्यूटी लगेगा वो पहले देना है आपको, वो आप बाद में दे सकते हो। कब? जब आपका प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट जब मार्केट में जाने वाला है तब दे सकते हो, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट डिस्पैच। ठीक है। सो बॉन्डेड लेबोरेटरी इज नथिंग बट द प्लेस or premises licensed for manufacturing, storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, Indian or narcotic drug on which duty has not been paid। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया था जीपैट में। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम में आता है, जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट आपको इंस्पेक्शन करेगा आपका प्लेस का जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्यूटीएबल गुड्स की। तो वहाँ पे एक एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा कि वो 24 आवर्स आपके जो भी आपका जो प्लांट है वहाँ पे रहेगा, वो 24 आवर्स उसके देख रेख उसके अंडर हिज गाइडेंस, उसके देख रेख में ही आपको जितना भी अल्कोहल आपको यूज करना है फॉर्मुलेशन में, वो अल्कोहल उसके अंडर ही आपको, उसके प्रेजेंस में ही आपको निकालना पड़ेगा, उसके प्रेजेंस में ही सब कुछ करना पड़ेगा। और जब आपका प्रोडक्ट बन के फाइनल रेडी हो जाएगा तब आपको गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अ बॉन्डेड लेबोरेटरी ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। नाउ नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब क्या? इसके अपोजिट, सेम थिंग, premises license for manufacturing and storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, hemp, narcotic drugs and other product on which duty has been paid। मतलब यहाँ पे क्या है कि ड्यूटी ऑलरेडी भर चुके हैं आप। जैसे अल्कोहल जो है आपके लिए, मान लीजिए कि एक 100 लीटर, 100 लीटर्स अल्कोहल लग रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को इंटीमेशन देंगे कि हमको 100 लीटर्स अल्कोहल लग रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो गवर्नमेंट बोलेगा तो एक तो पहले ड्यूटी भरो उसके ऊपर, या फिर आप ड्यूटी बाद में भी भर सकते हो। अगर आपको पहले ड्यूटी भरना है तो ड्यूटी भर के जितना भी उसके ऊपर टैक्स है वो टैक्स पहले भरो और लेके जाओ बैरल, टैक्स भर देंगे आप, बैरल लेके जाएंगे। तो वहां पे आपको कोई मॉनिटर नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे सो ड्यूटी आपने पे किया है, आप कितना यूज करना है क्या करना है आप अपना देख लो, लेके जाओ फेंक दो या फिर यूज करो, हमको कुछ लेना देना नहीं। एक बार आपने ड्यूटी पे किया, सो दैट इज अ नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। सो बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या होता है, ड्यूटी पे नहीं किया होता है पहले, वो बाद में करेंगे। कब करेंगे? प्रोडक्ट जब बन जाएगा तब, बॉन्डेड लेबोरेटरी में। और इसमें क्या होगा, आपको एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो 24 आवर्स आपके प्लांट में रहेगा मॉनिटर करने के लिए। उसके प्रेजेंस में ही आपको अल्कोहल बैरल से निकालना है और प्रोडक्ट बनाना है। और बाद में जब प्रोडक्ट डिस्पैच होगा तब भी वो एक्साइज ऑफिसर वहीं पे रहेगा। ठीक है। उसके प्रेजेंस में ही तब उसको आपको ड्यूटी पे करना है गवर्नमेंट को। अगर ये नहीं चाहते तो नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। एक बार आपने पहले बैरल लेके आए गवर्नमेंट से अल्कोहल का, उसके ऊपर ड्यूटी पे किया, अल्कोहल, इंडियन एम नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब ये सब का ऊपर ड्यूटी पे किया आपने पहले ही, तो आप लेके जाओ, बाद में आप मैन्युफैक्चर करो, कुछ भी करो। ठीक है। या फेंक दो, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। सो बॉन्डेड लेबोरेटरी में आपको इतना याद रखना है कि bonded laboratory is laboratory on which duty has not been paid, and non-bonded laboratory is laboratory on which duty has been paid। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में अपन गैप लेते हैं थोड़ा सा, दोपहर में देखते हैं, मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं। आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो।